In one, diamagnetic material in a magnetic field moves. Diamagnetic material having magnetic susceptibility is negative and small, so it is repelled by the magnetic field, external magnetic field. So it moves, because of repulsion, it moves stronger, bigger part of the magnetic field. So option 1 is correct. Question 2. If magnetic dipole moment of diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material are denoted by mu d, mu p and mu f. D. Mu d is for diamagnetic, mu paramagnetic, f for ferromagnetic material. For diamagnetic material it is 0, for paramagnetic material non-zero but small, for ferromagnetic material it is non-zero again but very large. So option 1 is correct. Question 3. Nickel shows the ferromagnetic property. Temperature is increased beyond the Curie temperature, it will behave like पैरामैग्नेटिक मटेरियल. टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि जो डाइपोल्स हैं, जो अलाइंड हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अलाइंड हैं डाइपोल्स, स्ट्रांग मैग्नेटिक तो करता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें इसके डाइपोल्स टर्ब हो जाएंगे, तब ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेगा, बट इट विल बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल. पैरामैग्नेटिक मटेरियल बियॉन्ड Curie temperature will behave like paramagnetic material above or at Curie temperature. Option 4 is correct. Curie temperature above which ferromagnetic material will behave like a paramagnetic material. So here option 3 is correct. Question 5. Diamagnetic material brought near the north pole or south pole of a bar magnet ये हमेशा रिपेल होगा, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो. इसका काई एम नेगेटिव है, स्ट्रंगर टू मैग्नेटिक फील्ड करेगा, स्ट्रंगर मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा. हमेशा ये उल्टा हो जाता है. अगर नॉर्थ पोल के पास में मैग्नेटिक मटेरियल हम रखें हैं डायमैग्नेटिक, तो इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये रिपेल होगा. अगर हम साउथ पोल की बात करें तो इसमें मटेरियल में साउथ पोल डेवलप होगा और ये रिपेल करेगा. सो डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा रिपेल होगा बाई नॉर्थ पोल एज वेल एज बाई साउथ पोल. स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में जाने की टेंडेंसी होती है इसकी. तो ऑप्शन 4 is correct. Question 6. The magnetic dipole moment of diamagnetic material is equal to 0 always. प्रॉपर्टी है आई एम नेगेटिव के अपोजिट पोल डेवलप हो जाता है, इसमें इस फील्ड में रखो से रिपेल ही करेगा. इसका डाइपोल मोमेंट और डायमैग्नेटिक मटेरियल इज 0. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 7. देयर आर 4 लाइट वेट रॉड सैंपल A, B, C, D separate suspended by threads separately. A bar magnet is slowly brought near each sample and following observation noted is feebly repelled. मतलब ए क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, ए डायमैग्नेटिक हो गया, बी इज अट्रैक्टेड यानी बी पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया, सी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड मींस सी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, डी अनअफेक्टेड मींस इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. यहाँ पर जो रहा है सबसे ऑप्शन बी इज करेक्ट. बी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये अट्रैक्ट होता है, फीबली मींस वेरी स्मॉल अट्रैक्शन. क्वेश्चन 8. द मैग्नेटिक susceptibility is negative only for diamagnetic material. Only for diamagnetic material. तो मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा सी. Susceptibility is negative for diamagnetic material. Negative and small. For paramagnetic it is positive and small. For ferromagnetic it is positive and very large. So option correct. Question 9. When diamagnetic rod is placed vertically between the poles of electromagnet and current in the electromagnetic material is switched on, means magnetic field produced, then because diamagnetic rod it is pushed up, the chi susceptibility negative है, it is coming out of the magnetic field and rod gains the gravitational potential energy work required. ये magnetic field electromagnet में हम करंट देंगे इसमें, ये मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा इससे बाहर जाएगा तो ये रिपेल्ड होगा. काई जम इसका नेगेटिव है ससेप्टिबिलिटी, तो ऊपर जाने की वजह से इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट की वजह से हो रही है. अगर
करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो रिपल नहीं होगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप ही नहीं। तो करंट इज द सोर्स फॉर दिस वर्क डन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज, इसकी बात करते हैं, BH कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व और BH कर्व का कर्व है इस पर सॉफ्ट आयरन। दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट OF is called coercivity and OA called retentivity। यहाँ पर for electromagnet coercivity should be small and retentivity also small and area of BH curve भी again क्या होगा, जल्दी से हम इसे मैग्नेटाइज कर लेंगे, डीमैग्नेटाइज कर लेंगे। अगर इसका एरिया कम होगा एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होगी पर साइकिल, एनर्जी रिक्वायर्ड पर साइकिल इज लेस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो इस बातों को ध्यान रखते हुए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A and resistance R is wound up as current carrying coil in the shape of number 1 equilateral triangle, number 2 square of side A। Magnetic dipole moment in each case हमको फाइंड करना है करंट जबकि दोनों में सेम है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, A मतलब यहाँ पे एरिया है, N नंबर टर्न्स, I करंट है। केस 1 जो हम लिटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, ऑफ साइड क्या है इसका A, यहाँ पे N है नंबर टर्न्स, 12 टोटल लेंथ है, तो नंबर टर्न्स कितना हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा, A 3A 12 टोटल लेंथ थी 12 10 ये हो गया। हम एरिया निकाल लेंगे इसका, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 हाफ इंटू बेस इन हाइट, ये हाइट h हो जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर माइनस ये a/2 a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 यानी √3a अपॉन 2 पुट कर देंगे, √3a/2 एरिया हो जाएगा √3a स्क्वायर बाई 4। डाइपोल मोमेंट हो गया, ट्राइंगल जब बनाया हमने नंबर टर्न्स इसमें 4 हो गए, करंट I है, एरिया √3a स्क्वायर बाई 4। क्वेश्चन 1, सेकंड केस में हमने स्क्वायर किया ऑफ साइड A टोटल लेंथ है 12A, तो नंबर टर्न्स हो जाएंगे यहाँ केस में 3, एरिया हो जाएगा A स्क्वायर, तो डाइपोल मोमेंट होगा इसमें N3, करंट I, ये एरिया A स्क्वायर। तो फर्स्ट केस का होगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा I A स्क्वायर √3 3I A स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट।